Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your first Digital System Design lab session. And its title is Introduction to Models and Xylence IEC Project Design Flow and Verilog HDL. As we have already discussed in our previous lab session, that we will be following the Xilinx IEC project module in for designing the different Verilog HDL modules. And I will not be focusing on the Model Sim tool for this purpose. So it is just to give you an idea of what kind of tools can be available for writing down your Verilog HDL modules. Um, I have already discussed a great detail about Verilog HDL and how do we actually write down their modules. But however, some details about how to utilize the Xilinx IC project design flows tool for writing down these Verilog modules was still remaining to be touched. So I will mostly focus on that part in this demonstration. So let's start at how we are going to follow up. I will quickly give you a recap of what we learned about Verilog HDL, and then I will let you know that how you are going to design these modules in Xilinx ISC. Here is the reference book for your guidance. It is not essential that you actually purchase this book, but it is for those students who wish to go beyond the lectures that I am providing to you. Um, Now, to let you know that our traditional design approaches for a DLD circuit is basically a schematic diagram. Our schematic diagram is mostly designed in different type of tools such as PSpice and Proteus or any other tool that you have gone through using throughout your DLD theory or lab even. But however, the Verilog HDL or hardware descriptive languages. These are basically what? Hardware descriptive languages. Hardware descriptive or description languages. So HDL is mostly referred to those approaches in which we wish to avoid or bypass the traditional design approaches for any kind of circuit. तो वेरीलॉग पर जाने की हमें या एच डी एल टाइप की लैंग्वेजेस पे मूव करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट microprocessors are designed in a very complex manner and throughout their designing process we require that उनकी हम properly testing साथ साथ करते रहें. Once we create a schematic, हमने एक बहुत complex chip design का हमने एक schematic बना लिया after going through a lot of hardship, but still it creates some problem at the time of simulation. तो at the last moment उसको debug करना बहुत मुश्किल होता है. So that's why एक लैंग्वेज अप्रोच भी यूटिलाइज होती है जो कि एक बेहतर अप्रोच है फॉर डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. यहाँ पर तो एग्जांपल बहुत सिंपल सर्किट्स की दी गई है बट वी ऑलरेडी नो दैट यूज थ्रू आउट योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर यू हैव स्टडीड दैट देयर आर very much complex designs than these that we actually have to go through to for providing to the foundry so that they actually develop those designs uh, for our computer systems. So HDL के बारे में ये चीज़ मैं already discuss कर चुकी हूँ that it is basically um, very similar to a C structure, C++ structure, and not exactly that. I will not prefer that आप उसी concept को follow करें जो कि C और C++ में आपने utilize किया. इसमें थोड़ा सा difference है. आप इसको अगर एज अ न्यू लैंग्वेज के तौर पर ही इसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलें तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इसके लिए इसके अंदर मूव करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. तो मोस्टली पीपल डिस्कस इन दिस वे दैट एच डी एल और वेरीलॉग एच डी एल और वी एच डी एल जो कि वी एच डी एल विल बी द पार्ट दैट यू विल स्टडी इन योर थियोरी लेक्चर्स.
तो वेरिलॉग HDL जो है ये मोस्टली C या C++ के स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है. It is although similar to that visibly, but it's not actually in very much similar to that, क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू एनी अदर मशीन लैंग्वेज. तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ मेंशन है दैट इट इज़ डिवाइस इंडिपेंडेंट. डिवाइस इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी टूल पर उसको राइट डाउन कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में या किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, आपका सेम कोड हर किस्म के टूल में यूटिलाइज हो जाएगा. एंड सेकेंडली इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंसिव पैरेलल ऑपरेशंस. और जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह हमने मशीन लैंग्वेजेस देखी हुई हैं, उसके अंदर मोस्टली सीरियल ऑपरेशन होते हैं. बट हाउएवर इन HDLs पैरेलल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और एक मॉड्यूल एट द सेम टाइम पैरेलली, और डिफरेंट मॉड्यूल्स भी अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सब के सब मॉड्यूल्स पैरेलली इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. और उसकी ज़रूरत भी आपको ऑलरेडी पता है कि क्यों होती है, बिकॉज हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस या डिफरेंट डिवाइसेस जो है एक सिंगल क्लॉक साइकिल के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली एग्जीक्यूट कर रही होती हैं. सो दैट्स वाई HDL और हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या इनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि इसकी वर्किंग भी बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए टू आवर फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. That's why यही एक basic crux है that makes it very much different in working compared to your typical or traditional hard machine languages. So it is basically what? It is an alternative to schematics, and it is a very good alternative because इसके अंदर हम design को साथ साथ debug कर सकते हैं. We will see that how we actually go through this. Or okay. When a language is used above the purpose provide an alternative to schematic, it is referred to as structural description. Structural description को हम gate level design भी या gate level modeling भी बोलते हैं, gate level model भी बोलते हैं. इसको हम further देख लेते हैं. Since I've already discussed this thing previously, so I will quickly go through some further details. पहली चीज़ तो यहाँ पर ये थी कि वेरिलॉग HDL के बारे में मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर एक ही डिज़ाइन को मॉडल करने के लिए या उसके मॉड्यूल्स लिखने के डिफरेंट तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ दोज इज़ द बिहेवियरल मॉडल या बिहेवियरल मॉडलिंग. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी एब्स्ट्रैक्शन जो है या एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल होता है. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि हमने एक कोड ऐसा लिखा बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर किसी भी हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए कि आपको उस कोड को देखकर ये नहीं पता चलेगा कि उसके बैकएंड के ऊपर क्या परफॉर्म हो रहा है, या उसकी गेट लेवल के ऊपर या इवन स्विच लेवल के ऊपर एक्चुअली क्या प्रोसेस चल रहा होगा. सो दिस इज़ एक्चुअली हिडन थिंग कि आपने इसको बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस तरह हम इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, एंड इट हैज़ टू ट्रांसलेट एंड देन सब ट्रांसलेट एंड देन अगेन सब ट्रांसलेट इनटू अ मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ अ बिट स्ट्रीम जिसको वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है बहुत हाई है जब आपने कोड लिखा और या इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है वो बहुत लो है. सो उसको अपने रीडेबल फॉर्म में या अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाने के लिए उसको काफ़ी ऑपरेशंस में से गुजरना पड़ता है. राइट नाउ द नेक्स्ट type of modeling या next type of a method to write down a Verilog HDL code is a data flow modeling. तो data flow modeling में abstraction level जो है थोड़ा middle level पर आता है. इसके अंदर हमें थोड़ी सी डिटेल समझ में आ रही होती है कि बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होगा या कौन से कंपोनेंट्स माइट बी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड फॉर डेवलपिंग या फिर और वर्किंग आउट दिस कोड.
और थर्ड लेवल है दैट इज द गेट लेवल, इसको हम स्ट्रक्चरल लेवल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल लेवल या गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर हमें जो हमने मॉड्यूल लिखा वेरिलॉग के अंदर, उसके अंदर जितनी भी इंटरकनेक्शंस हैं गेट्स के, वो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे होते हैं। यू हैव टू एक्चुअली मेंशन एट द गेट लेवल दैट आपने कौन से गेट्स यूज़ करने हैं टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन, या कोई भी आपके पास सर्किट है उसको देखकर आपने एक 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 गेट की डिटेल बतानी है, right? So this is a more detailed structure type of Verilog कोडिंग। तो इसके अंदर इसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं फॉर हर मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अगर हों तो गेट लेवल मॉडलिंग को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। मोस्टली डिज़ाइनर्स यूटिलाइज एन इंटरमिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ मॉडलिंग्स। इसके अलावा एक और मॉडल भी होता है विच इज़ द स्विच लेवल। स्विच लेवल के अंदर हम मॉसफेट लेवल के ऊपर जाकर हम एक डिज़ाइन बताते हैं कि आपने कौन से मॉसफेट को किस मॉसफेट के साथ इंटरकनेक्ट करना है। तो दैट इज़ अ लॉट मोर डिटेल्ड प्रोग्रामिंग। तो स्विच लेवल प्रोग्रामिंग इतनी रिकमेंडेड नहीं होती एंड वी यूजुअली अवॉइड इट बिकॉज इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हमारा काम गेट लेवल डेटा फ्लो और बिहेवियरल मॉडलिंग से चल जाता है। For this particular lab, I will be focusing on data flow and gate level modeling. तो गेट लेवल मॉडलिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड डेटा फ्लो के बारे में मैं आपको मज़ीद फर्दर एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ दैट आई हैव दिस बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। इसको डेटा फ्लो लेवल पर मॉडलिंग करने के लिए मुझे सिम्बल्स को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो सिम्बल्स को जब मैं यूज़ कर रही हूँ गेट लेवल के ऊपर, मैंने एक्चुअली कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर एंड गेट एक यूज़ कर रही हूँ, तो आई विल यूज़ दिस कीवर्ड एंड, राइट, टू डिस्क्राइब दैट आई एम यूजिंग एंड गेट। बट हाउएवर यहाँ पर डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर अगर मुझे दो वेरिएबल्स के दरमियान में एंड ऑपरेशन करना है, सो आई विल एक्चुअली यूटिलाइज अ सिंबल फॉर दिस पर्पस, राइट। सो अब हम आगे जाते हैं। बिहेवियरल मॉडलिंग को अभी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को भी, कॉन्करेंसी के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दैट वेरिलॉग HDL के अंदर या कोई भी HDL जो है उसके अंदर हम सारे मॉड्यूल्स को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करवा, और हमें करवाने की ज़रूरत नहीं होती। योर सिस्टम एक्चुअली it is designed in such a way that सब मॉड्यूल्स की सब कमांड्स को वो एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली कर सकता है, या अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स भी हैं तो उन सब मॉड्यूल्स को वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। और यही इसका बेसिक क्रक्स है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस। सिमुलेशन एंड सिंथेसिस पार्ट जो है, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन। ये आपका जो Xilinx टूल है ये खुद परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हमने जो वेरिलॉग कोड डिज़ाइन करके दिया आपके Xilinx की IDE को, तो उसके बाद उस कोड को उसने एक कॉरेस्पॉन्डिंग हार्डवेयर फॉर्म में उसने एक उसका हार्डवेयर जनरेट करना है। इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। सिंथेसिस प्रोसेस से ही हमें पता चलेगा, हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं दैट हमने जो कोड प्रोवाइड किया था, दैट आइदर इज इट एक्चुअली what we wanted to do, or we made some kind of logical error in that. Or PLI is going to be your Xilinx in this case, and now this is the module. मॉड्यूल के बारे में कुछ इस तरह से है कि आपने एक सिंटैक्स लिखना है। ये दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ सिंटैक्स ऑफ वेरिलॉग HDL। तो वेरिलॉग HDL के अंदर जब हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमने इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स करनी है। हर मॉड्यूल एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है एक ब्लैक बॉक्स को। ये ब्लैक बॉक्स हमें ये बता रहा है कि आपने जो भी सर्किट बनाया
या जो भी सर्किट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसके अंदर कितनी इनपुट्स हैं, पोर्ट्स कितनी हैं, कितनी इनपुट पोर्ट्स हैं और कितनी आउटपुट पोर्ट्स हैं, उन सब को आपने इस ब्लैक बॉक्स के अंदर मेंशन करना है. These are your inputs, let's suppose, and these are your outputs. These are your output ports, right? तो इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स मुझे मेंशन करना है या इसका एक सिंटैक्स लिखना है जो कि मैं वेरिलॉग की आईडीई के अंदर एंटर करूँगी. लेट्स सपोज मेरा इस मॉड्यूल का नाम है एडर, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. तो इस एडर के अंदर मैंने एक कीवर्ड लिखा मॉड्यूल. सबसे पहले ये कीवर्ड लिखा, दिस इज़ माय कीवर्ड. तो ये बिल्ट इन कीवर्ड है. आप इसी कीवर्ड, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते फॉर नेमिंग एनी काइंड ऑफ मॉड्यूल. तो अगर मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा है मॉड्यूल, तो उसके आगे मैंने इस मॉड्यूल का नाम लिखा है एडर. दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन नेम ऑन योर ओन. ये नेमिंग कन्वेंशन जो है ये आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं. एंड इनसाइड दिस मॉड्यूल जो हमने पेरेंथीसिस के अंदर मेंशन किए हुए हैं, इसके अंदर ए बी क्या है, ए बी का मैंने नाम मेंशन किया हुआ है. सबसे पहले बाय कन्वेंशन हम आउटपुट पोर्ट्स को मेंशन करते हैं. ये हैं आउटपुट पोर्ट्स, राइट. आफ्टर दैट पी क्यू क्या है, पी क्यू आपकी इनपुट पोर्ट्स हैं, सॉरी इन आउट पोर्ट्स हैं. ये इन आउट पोर्ट्स है. कुछ पोर्ट्स ऐसी भी होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट बोथ का पर्पस सर्व कर रही होती हैं. तो अगर आपने सबसे पहले आउटपुट पोर्ट्स प्रेजेंट की हैं, जितनी भी नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स हैं, एक है, दो हैं या 10 हैं, जितनी भी हैं, उनको आपने वन बाय वन फॉलोइंग द कीवर्ड आउटपुट, यहाँ पर शायद ये चीज़ मेंशन नहीं है, आपने हर आउटपुट के साथ कीवर्ड आउटपुट मेंशन करना है. जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे आपका Xilinx जो है ये उसको कंसीव नहीं कर सकता कि ये कौन सी पोर्ट है या इस पोर्ट की टाइप क्या है. सिमिलरली इन आउट पोर्ट जो है उसका नाम होता है इन, इसके लिए कीवर्ड भी इन आउट ही यूज़ होता है, ठीक है. और पी क्यू मैंने दो पोर्ट्स यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं, दो आर दी इनपुट. और इसी तरह अगर आपकी इन आउट नहीं है कोई पोर्ट, ऐसी ऐसी कोई पोर्ट्स नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप आउटपुट के फ़ौरन बाद इनपुट पोर्ट्स डिफाइन कर देंगे. यहाँ पर एक्स वाई है जो कि बिल्कुल एंड पर मैंने मेंशन की हुई है और इनके साथ मुझे कीवर्ड मेंशन करना है, दैट इज़ इनपुट. ये कीवर्ड आपने लास्ट में लिखना है. और ये एक्स वाई जो है बेसिकली ये आपकी इनपुट पोर्ट्स हैं. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन अ मॉड्यूल. और जहाँ आपने कीवर्ड मॉड्यूल लिखा, राइट, आपने पेरेंथीसिस के बाद सेमीकोलन लाजमी डालना है, राइट. इसके बाद इसके बगैर आपका सिंटैक्स एरर आएगा. तो जहाँ आपने कीवर्ड मॉड्यूल लिखा और जहाँ भी आपने दरमियान में आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी, ऑब्वियसली आपने अपना कोड डिज़ाइन करना है. तो जब आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने एक कीवर्ड लिखना है, दैट इज़ एंड मॉड्यूल. कुछ इसकी वजह क्या होती है कि आपके पास Xilinx के अंदर तो काफ़ी ईज़ हो जाती है, बट देयर आर सम टूल्स दैट डू नॉट एक्चुअली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ ईजीनेस. तो उसके अंदर हमें मैनुअली ये कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं. तो फ़िलहाल के लिए आप चूँकि Xilinx यूज़ कर रहे हैं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि आपकी पोर्ट्स कितनी हैं, आपने मॉड्यूल का नाम क्या रखना है, राइट. और उसके बाद आपने मेंशन करना है कि उसके अंदर इनपुट पोर्ट्स कौन कौन सी हैं, उनके उन वेरिएबल्स के नाम आपने मेंशन करना है, राइट. अब आते हैं आगे टेस्ट बेंच के बारे में हम नेक्स्ट लैब में डिस्कस कर लेते हैं. Similarly, I have presented here some basics of the syntax for this Verilog language, जिसके अंदर की सेंसिटिविटी है और कुछ कीवर्ड्स का सेट भी मेंशनड है कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं जो कि वेरिलॉग की या Xilinx की लाइब्रेरी में ऑलरेडी एज वेरिलॉग कीवर्ड्स मौजूद हैं और आप उनको रीयूज़ नहीं कर सकते फॉर एनी अदर पर्पस. और वेरिलॉग जो है बेसिकली केस सेंसिटिव होती है. तो अगर मैंने एक जगह वेरिएबल का नाम आउट रखा है और एक जगह मैंने आउट रखा है, तो दीज आर बोथ कंसिडर्ड एज डिफरेंट वेरिएबल्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड द सेम वेरिएबल्स, जस्ट लाइक इन सी. तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे भी मेंशनड हैं.
इनको आप देख लीजिएगा and I will provide these things to you. Now this was something that I asked you to implement. I have I have specified that आपने कौन सी exercise जो है वो यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपने स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के लिए यूज़ करनी है। एंड आफ्टर दैट आपने एक थर्ड एक्सरसाइज भी इम्प्लीमेंट करनी है जो कि क्या कर रही है कि इट इज़ एक्चुअली इनहेरिटिंग इंस्टेंसेस ऑफ बोथ एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। राइट, अब मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 मेंशन की है वाया अ बूलियन एक्सप्रेशन, और इसको मुझे मॉडल करना है इन वेरिलॉग कोड यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग। एंड एक्सरसाइज 2 है जहाँ पे मैं फिगर 1 को कह रही हूँ, ये है फिगर 1। इस फिगर 1 को मुझे यूजिंग स्ट्रक्चरल या गेट लेवल मॉडलिंग एक कोड लिखना है यूजिंग वेरिलॉग, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं थर्ड नंबर के ऊपर ये इंस्टेंसेस, जिन इंस्टेंसेस के अंदर एक ये बूलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट हो रही है और एक के अंदर ये सर्किट इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन दोनों को मैं रीयूज कर रही हूँ फॉर दिस एक्सरसाइज। इसको हम देखते हैं कि हम वेरिलॉग के अंदर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट इसको मैं अगर एक्सट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ पर एक्सरसाइज 1 मेरी ये बता रही है y equals ab plus b complement c. This is my boolean expression और इसको मुझे मॉडल करना है यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग, डेटा फ्लो, राइट। और सेकेंड एक्सरसाइज है मेरी दिस वन, जिसके अंदर एक सर्किट है और इसके अंदर 4 इनपुट्स है A B C D. A is being not here and after that I am getting an AND here. This is B and then I'm getting C भी AND हो रहा है इसके साथ, और इन दोनों की आउटपुट्स जो हैं वो D के साथ XOR हो रही हैं। और कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पर वैल्यूज़ भी हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, खुद से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं इन वेरिएबल्स का नाम, आपकी अपनी मर्जी है। ई एफ और जी, दीज आर माय इंटरमीडिएट वैल्यूज़ या इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं, ये फाइनल आउटपुट्स नहीं है। और फाइनल आउटपुट का नाम है कैपिटल में, कैप्स में है आउट, राइट। तो यहाँ पे भी मैं कैप्स में ही आउट लिख देती हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक इसका ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। इस ट्रुथ टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ रही है वो मैं अभी आपको जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँगी तो तब आपको इसकी बेहतर समझ में आ जाएगी। तो डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी आपने वेरिलॉग के अंदर मॉड्यूल लिखना है तो मॉड्यूल की कुछ नॉर्म्स हैं वो आपने फोकस करना है, उनको उनको आपने अवॉइड नहीं आप उनको कर सकते, राइट। तो डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको ये मेंशन किया कि आपने इसके अंदर यूटिलाइज करना है सिंबल्स को, राइट। फॉलोइंग एक कीवर्ड असाइन का आप यूज़ करेंगे। सिंबल्स के अलावा आप इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो थोड़ी मिडिल लेवल होती है, तो इसके अंदर हम गेट्स के नाम मेंशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि मॉड्यूल डिफाइन करना है। दिस इज़ एक मॉड्यूल, मैंने कीवर्ड लिखा बिकॉज फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग माय मॉड्यूल फॉर एक्सरसाइज 1। ये है एक्सरसाइज 1 का
मॉड्यूल, ठीक है। और इस मॉड्यूल का नाम मैंने रखा है EX1, राइट। और उसके अंदर आपने सबसे पहले आउटपुट पोर्ट्स मेंशन करनी है, तो आपने एक कीवर्ड लिखा आउटपुट, और आउटपुट पोर्ट का नाम है Y फॉलोइंग कॉमा, और उसके अंदर इनपुट पोर्ट्स अब आपने मेंशन करनी है। जितनी भी आपके पास कीवर्ड्स हैं वो सब स्मॉल में ही है, दे आर केस, उनका केस जो है वो आपने स्मॉल ही रखना है। और जब आपने कीवर्ड लिखेंगे आप डायलिंग्स के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, आपको पता चल जाता है। एंड नेक्स्ट इज इस एक बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर ABC 3 ही इनपुट्स हैं, यूनिक इनपुट्स 3 ही हैं, तो हम तीनों को बारी बारी मेंशन करेंगे। A इनपुट, B एंड इनपुट C, राइट, फॉलोइंग अ सेमीकोलन। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपना कोड लिखना है, जो कि कोड मेरी इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई भी करेगा और सॉल्व भी करेगा। तो डेटा फ्लो मॉडलिंग है, तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिख रही हूँ असाइन। ये कीवर्ड क्या करेगा कि इस असाइन के बाद मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखी उसको आउटपुट पोर्ट के अंदर स्टोर करा देगा। तो असाइन के बाद मैंने सबसे पहले आउटपुट पोर्ट को मेंशन करना है, दैट इज वाई। y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल के बाद मैंने जो भी लिखना है उसको y में स्टोर करा देगा। तो सबसे पहले मेरा क्या ऑपरेशन हो रहा है, a और b के दरमियान एंड हो रहा है, और एंड को मैंने डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, a डॉट से नहीं, सॉरी, एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे, या एंड आप ऑपरेटर यूज़ करेंगे, नॉट कीवर्ड, ऑपरेटर, a एंड b, राइट। उसके बाद और गेट है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज दिस सिंबल, ठीक है। आफ्टर दैट मैं b का नेगेशन कर रही हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेशन ऑफ b एंड c। इसको आप बेशक ब्रैकेट्स में भी लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो भी इट डजंट मैटर, राइट। यहाँ पर मेरे सेमीकोलन डाल दिया, एंड दिस एग्जीक्यूशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, ये दिस कोड इज कंप्लीटेड। कोड कंप्लीट करने के लिए आपको एंड मॉड्यूल का कीवर्ड लाजमी लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज इट डजंट रिकग्नाइज इट दैट आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, राइट। ये हो गया आपकी डेटा फ्लो मॉडलिंग फॉर एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 2 है, जिसके अंदर मैंने आपको मेंशन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया दैट आपने इस पर्टिकुलर सर्किट को यूजिंग स्ट्रक्चरल या गेट लेवल मॉडलिंग इसका कोड लिखना है। तो आपने सबसे पहले लिखा मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम मैंने रख दिया एक्सरसाइज 2, और इसके अंदर आउटपुट पोर्ट्स एक ही है, तो मैं मेंशन कर देती हूँ आउटपुट कैप्स में आउट, एंड इनपुट A, input B, input C and input D, right, and I've completed my semicolon here. तो आप मुझे स्टेप वाइज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जितने भी गेट्स इसके अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं उन सबको मेंशन करना है। सबसे पहले A नॉट हो रहा है, सो आई विल राइट हियर द नॉट कीवर्ड। उसके बाद कीवर्ड लिखने के बाद आपने इस गेट का नाम लिखना है, तो नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर G1 लिख दिया, को आपकी मर्जी है, यू कैन नेम इट एज एनीथिंग। और उसके बाद आपने आउटपुट लिखनी है। बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गई कि आपको जितनी भी आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट आउटपुट्स मेंशन कर दिए हैं, उसके लिए आप एक कीवर्ड वायर यूज़ कर सकते हैं, और उस वायर के नाम से, क्योंकि आपकी ये वायर जो है या ये इंटरमीडिएट आउटपुट्स जो हैं, ये ना आउटपुट्स के अंदर ये कैटेगराइज हो सकती हैं, ना ये इनपुट्स के अंदर कैटेगराइज हो सकती हैं, ना ही ये इन आउटपुट्स के अंदर कैटेगराइज हो सकती हैं। ये एक सेपरेट कैटेगरी है, और सेपरेट कैटेगरी के लिए आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं वायर,
जिसके अंदर आप जितनी भी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं या इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं उनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ई एफ एंड जी, राइट, ताकि आपका वेरिलॉग कोड या Xilinx जो है ये रिकग्नाइज कर ले कि आपकी इस कोड के अंदर अपार्ट फ्रॉम आउटपुट्स एंड इनपुट्स देयर आर सम इंटरमीडिएट वैल्यूज एज वेल। आफ्टर दैट सबसे पहले नॉट ऑपरेशन हो रहा है, तो नॉट कीवर्ड लिखा, उसका नाम हमने लिखा और उसके अंदर सबसे पहले आपने आउटपुट मेंशन करनी है बाय कन्वेंशन। आउटपुट क्या है इसकी ई और इनपुट क्या है इसकी ए। सिंस नॉट गेट है तो इसकी ए की इनपुट होती है और ए की आउटपुट होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट गेट इज एंड, दिस इज एंड, इसका नाम मैंने G2 रख दिया एंड इसकी आउटपुट है F एंड इनपुट्स इसकी दो हैं, वन इज E और फर्स्ट इनपुट इसकी E है, सेकेंड इनपुट B है, तो हम इसी सीक्वेंस में इसको लिखेंगे, दिस इज B, राइट। एंड नेक्स्ट आपका एक और एंड गेट है, इसका नाम मैंने G3 रख दिया एंड इसकी आउटपुट है G एंड इनपुट्स हैं, फर्स्ट इनपुट है F और सेकेंड इनपुट है C एंड लास्ट में we have an XOR gate जिसको मैंने G4 मेंशन किया है एंड इट हैज़ एन इनपुट। सबसे पहले आउटपुट मेंशन कर देते हैं, दैट इज कैप्स में आउट है एंड इनपुट्स हैं G एंड D, राइट। So this concludes my gate level code for this या गेट लेवल कोड कह लें या स्ट्रक्चरल मॉडलिंग हो गई, ये आपका कंक्लूड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप एंड मॉड्यूल का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे सो योर सिस्टम रिकग्नाइजेस इट एज अ कंप्लीट मॉड्यूल, राइट। अब आती है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज़ अ बिट ट्रिकी। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करने की कोशिश करूँ तो इफ़ इट वर्क्स दिस वे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। राइट, दिस इज़ माई एक्सरसाइज 3। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ माई एक्सरसाइज 3। तो अब इसका मॉड्यूल मैं किस तरह से लिखूँगी, ये एक्सरसाइज 3 जो है ये मुझे बता रही है कि मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 EX1 और EX2 ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं। दिस इज एक्चुअली इनहेरिटिंग बोथ ऑफ दीज एज इंस्टेंसेस और उन इंस्टेंसेस के अंदर मैंने इनपुट्स मैंने इन इनपुट्स का नाम भी चेंज कर लिया है। इन IN1 IN2 IN3 एंड IN4 के नाम से मैंने इनपुट्स लिखी हैं जो कि इनकी ऑलरेडी जो डिफाइंड पोर्ट्स हैं उनके साथ अटैच हो रही हैं, राइट। और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ भी हैं इसके अंदर, वो है T0 एंड T1, जिनको आप ऑब्वियसली वायर के नाम से स्पेसिफाई करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग एन एंड गेट जो कि इन दोनों इंस्टेंसेस को एंड कर रहा है और उसकी आउटपुट जो है यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिसको मैंने यहाँ पर स्मॉल में आउट वेरिएबल के नाम से मेंशन कर दिया है। सो इसके अंदर इसका जब मुझे मॉड्यूल लिखना है इसके अंदर भी मुझे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करनी है। ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली मैं जब भी आपको फिगर्स की फॉर्म में कोई भी सर्किट देती हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो if it is not mentioned specifically that you are supposed to utilize data flow or behavioral modeling, then you automatically, अगर ये mention नहीं है तो आप automatically इसको structural modeling के साथ ही मॉडल करेंगे, right? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मॉड्यूल कीवर्ड लिखना है
एंड इसका नाम मैंने रख दिया एक्सरसाइज 3 और इसके अंदर आउटपुट पोर्ट है स्मॉल आउट के नाम से एंड इनपुट यूनिक इनपुट्स जो हैं इसके अंदर 4 ही हैं because some of these inputs are being reused in both of these black boxes. एक ये आपका है और एक ये इंस्टेंस है. इन दोनों इंस्टेंसेस के अंदर 3 इनपुट्स ऐसी हैं जो कि रीयूज हो रही हैं एंड यूनिक इनपुट्स जो है इसके अंदर सिर्फ 4 हैं तो हम उन्हीं 4 को मेंशन करेंगे IN1, IN2, IN3 and IN and semicolon here, right? तो उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जो कि मैंने अपनी मेंशन करना है यहाँ पर दैट कोड मेरा किस तरह से लिखा जाएगा. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इंस्टेंस को कॉल करना है या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है. जिस तरह आपने C++ के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हम उसके पैरामीटर्स जो इनपुट जा रहे होंगे वो हम मेंशन कर देते हैं. तो यहाँ पर इनपुट्स के अंदर या चूंकि आप वही इनपुट्स तो यूज़ नहीं कर रहे, आप यहाँ पर न्यू इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं. अगर सेम नाम भी होते तब भी हम उन इनपुट्स को नई वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज दिस टाइम वी आर कॉलिंग दिस प्रोग्राम और दिस मॉड्यूल फ्रॉम एन एक्सटर्नल साइट. तो उसके लिए हमें इनपुट्स को अलग से या ये अलग वेरिएबल्स के तौर पर ही कंसिडर होंगी. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन इंस्टेंसेस को मुझे कॉल करना है और उसके बाद मुझे इसके पैरामीटर्स पास करवाने हैं और पैरामीटर्स क्या हैं, इनकी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स हैं. तो एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट रह गई दैट इज़ I am supposed to mention the intermediate values here that is T0 and T1, right? एंड आफ्टर दैट मैंने अपना फर्स्ट इंस्टेंस जो है उसको कॉल किया और उसका एक नाम भी मेंशन कर दिया है. बेशक वही नाम लिख लें, इट डजेंट मैटर. और इस इंस्टेंस को कॉल करने के लिए मुझे इसके पैरामीटर्स को पास करना है. तो इसकी आउटपुट पोर्ट क्या है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एट 0 और इनपुट्स हैं इसकी IN1, IN2 एंड IN3. सेकेंड मैंने इंस्टेंस अपना कॉल करना है जिसका नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से G2 अगेन रख दिया है. इसकी आउटपुट है T1 और इनपुट्स हैं इसकी IN1, IN2, IN3 and IN4, right? And after that मैंने अब क्या करना है, इन दोनों इंस्टेंसेस को एंड करना है. सो आई विल यूज़ एन एंड कीवर्ड हियर, नेम इट एनीथिंग आई वांट. और इसकी आउटपुट जो है इस एंड गेट की दैट इज़ स्मॉल आउट बिकॉज मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया. एंड इनपुट्स इसकी क्या है, T0 and T1 and at the end I'm going to complete my module by writing this keyword end module. तो इसको टेस्ट हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए अब यही इम्पोर्टेंट आपका फेज है. I will start my ISE designs. Right. This is a very heavy software, so you have to be patient about its working. थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ऑपरेट होने में. राइट. तो अगर if I try to
restarted क्योंकि मैं ये कोड ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, so this will not actually help you explain. मैं new project create करती हूँ and I name it as labwork 1, right? And rest of the things will remain the same. Evaluation development board को non specified ही रखें और बाकी चीज़ों को भी as it is रखें, and then I finish it. और दिस इज़ माई इंटरफेस जिसके अंदर मुझे अपना कोड स्टार्ट करना है। तो कोड स्टार्ट करने के लिए मैं ये जो हायरार्की आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, आई गो टू देयर एंड आई राइट क्लिक इट एंड ऐड टू एंड आई क्लिक ऑन द न्यू सोर्स। न्यू सोर्स में मैं वेरीलॉग मॉड्यूल सेलेक्ट करती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट बेंच और एनीथिंग एल्स। मैं सिर्फ एक वेरीलॉग कोड जनरेट करना चाह रही हूँ, वेरीलॉग मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल का नाम मैं ex1 रख रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट माई ex1। नेक्स्ट, अब ये मुझे एक इंटरफेस दे रहा है जिसके अंदर मैं अपनी मेंशन कर सकती हूँ कि मेरी इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं। सबसे पहले बाय कन्वेंशन आई एम गोइंग टू शो दिस, write down the outputs, and inputs हैं इसकी A, B and C, right? And I click next. तो अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक मॉड्यूल इसने क्रिएट करके दे दिया जिसके अंदर आउटपुट पोर्ट्स भी मेंशन्ड है और इनपुट पोर्ट्स भी मेंशन्ड है। आई जस्ट हैव टू राइट डाउन माय कोड। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया था कि असाइन एक कीवर्ड यूज़ किया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया और उसके अंदर आउटपुट है y, दिस इज इक्वल टू A and B और negation B and C and semicolon. I save it. सेव करने के बाद अगर वो पार्सिंग डिज़ाइन हायरार्की कंप्लीटेड सक्सेसफुली की ऑप्शन देता है तो दैट मीन्स कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, राइट? अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो ये कोड लिखा है, मैंने एक डेटा फ्लो मॉडल किया है इसको, तो इज़ इट करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ और दिस इज़ ऑलरेडी सेट एज टॉप मॉड्यूल, तो मुझे इसको कुछ भी अब करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन में जाती हूँ एंड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रोसेसेस के अंदर सिंथेसाइज। तो आपको ये चीज़ मैंने मेंशन की थी कि जब आपने कोड लिखा तो आपके जो Xilinx टूल है इसने एक्चुअली आपके कोड को सब ट्रांसलेट करना है टू हार्डवेयर लेवल। तो उसके लिए आप सिंथेसिस ऑपरेशन करते हैं। तो आप इफ़ आई क्लिक दिस प्लस सिंबल तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। What you do is simply double click this synthesize. ओके, राइट क्लिक करके हम इसको रन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। सिंथेसिस ऑपरेशन इतना इजी नहीं है सिस्टम के लिए। So this will actually create a schematic. आप उस schematic को देखकर टेस्ट या चेक कर सकते हैं कि आपने जो कोड लिखा है इज इट एक्चुअली फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम डिज़ाइन जो हम उसको प्रोवाइड करना चाह रहे थे, या अगर उस डिज़ाइन से थोड़ा सा और डिफरेंस आएगा सो दैट मीन्स कि आपके जो आपने कोड लिखा है उसके अंदर कोई लॉजिकल एरर है। तो फिलहाल के लिए सिंटैक्स एरर कोई नहीं है। सिंटैक्स एरर तो ये आपको फ़ौरन बता देता है
बट however अगर लॉजिकल एरर है तो वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा उसको। राइट, इट हैज़ बीन सिंथेसाइज नाउ। तो अब मैं RTL स्कीमेटिक पे जाती हूँ एंड आई डबल क्लिक इट। इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंड देन आई प्रेस ओके। तो अब ये मुझे एक ब्लैक बॉक्स दिखा रहा है जिसका नाम है EX1। इसकी एक आउटपुट है और 3 इनपुट्स हैं। This is very much similar to what I wanted it to do. तो फर्दर डिटेल्स देखने के लिए मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ एंड आई सी दैट यहाँ पर एक एंड गेट लगा हुआ है, एक और एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पर, और एक और गेट लगा हुआ है। सो यही गेट्स मैंने इसको बताए थे बनाने के लिए। y equals a dot b plus b complement c, राइट। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि a और b इन दोनों को एंड कर रहा है। दिस इज माई b, इन दोनों को ये एंड कर रहा है और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट आउटपुट आ रही है, राइट। और इस आउटपुट को वो और गेट में डाल रहा है, और गेट में ही डालना था, लेकिन और गेट की जो सेकेंड इनपुट है वो क्या हो रही है, दैट वॉज सपोज टू बी b कॉम्प्लीमेंट डॉट c। तो b कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यस हो रहा है। दिस बबल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लीमेंट। सो आपका b कॉम्प्लीमेंट हो रहा है और c एंड हो रहा है। ये दोनों, इसकी जो इंटरमीडिएट आउटपुट है दिस इज गोइंग टू और इसकी जो आउटपुट है फाइनल उसका नाम y शो हो रहा है, राइट। तो राइट, तो इसका मतलब कि मेरा ये स्कीम जो है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इस दिस सर्किट इज एक्चुअली करेक्ट। इसको टेस्ट करने के लिए, ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने के लिए भी मेथड है, उसको हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो लेट्स राइट डाउन द अदर सोर्स। उसके लिए मैंने राइट क्लिक करके ऐड न्यू सोर्स किया एंड अगेन वेरिलॉग मॉड्यूल। दिस टाइम आई नेम इट एज EX2, right, and I mentioned there are one output that is small out। इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ मैं एज आउटपुट, और इनपुट्स हैं 4 इनपुट्स हैं A B C and D, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग मेरे पास ये कोड बन रहा है ना। इसके अंदर एक इनपुट इंटरमीडिएट वैल्यूज भी हैं, और वो वैल्यूज क्या हैं, E F and G, wire E F and G, right। after that मुझे सबसे पहले नॉट करना है। नॉट इज हैपनिंग बिटवीन what E and A। नॉट का हम एक नाम भी लिख लेते हैं, E and A। आफ्टर दैट आई एम परफॉर्मिंग एन एंड ऑपरेशन जिसका नाम मैंने G2 अपनी मर्जी से रख दिया है, एंड दिस इज हैपनिंग बिटवीन F, E and B। F is the output and E and B are the inputs। Again an AND gate G3, और इसकी आउटपुट है G और इनपुट्स हैं F and C। and next I have an XOR gate जिसका नाम मैंने G4 रखा है, and इसकी आउटपुट है out। क्योंकि मैंने आउटपुट पोर्ट का नाम स्मॉल में ही मेंशन कर दिया है तो आप इसको स्मॉल में ही लिखें, और इनपुट्स हैं इसकी F and D। राइट, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा। इज इट करेक्ट? G and D, not F, this is G and D। ठीक हो गया। और नाउ आई विल, अब मुझे इसको सिंथेसाइज करना है तो इसको मुझे टॉप मॉड्यूल सेट करना पड़ेगा। आई राइट क्लिक इट एंड सेट इज अ टॉप मॉड्यूल, यस। एंड अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है सिंथेसाइज करने की, राइट। तो इसको अब मैं सिंथेसाइज करती हूँ। आई डबल क्लिक इट,
राइट। तो अब ये सिंथेसाइज हो गया है। तो एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है कि आपका कॉम्बिनेशनल पार्ट डिले जो है ये हर सिंथेसिस ऑपरेशन के बाद ये इसको मेंशन करता है, राइट। तो अब मुझे देखना है कि इसका RTL स्कीमेटिक जो है दैट एग्जैक्टली द सेम दैट आई वांटेड इट टू डू और नॉट। ओके, तो ये इसने एक ब्लैक बॉक्स क्रिएट किया है, इसकी एक आउटपुट है, 4 इनपुट्स हैं, सिमिलर है। लेट्स सी एट द इनसाइड। इनसाइड में सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि ए का नॉट कर रहा है। इज इट डूइंग इट? यस। यहाँ पर एक बबल है, सो दिस इज एक्चुअली ए का नॉट ऑपरेशन कर रहा है। अभी 3 इनपुट एंड उसने लिया ही इसलिए है बिकॉज यहाँ पर हमारा उसने उसको स्क्वीज कर लिया है टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली ये सेम ही आउटपुट आ रही होगी। और उसके बाद ए के बाद दिस वन राइट हियर, ठीक है। ए का नॉट है और इस नॉट को बी के साथ एंड कर रहा है। इज इट डूइंग इट? ए एंड बी बोथ एंड हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट बी और सी जो हैं, जो इन दोनों की जो आउटपुट आ रही है वो सी के साथ एंड हो रही है। सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 3 इनपुट एंड गेट। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इट इज एक्चुअली डी जो है, डी और इसकी जो आउटपुट है दे आर बोथ गोइंग टू द XOR। अब XOR के लिए यहाँ पे एक ट्राइंगुलर सा सिंबल बना हुआ है। ये ट्राइंगुलर सिंबल कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग के आपके पास इसकी आउटपुट के ऊपर एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर डेटा जो है, ये डेटा जो यहाँ मेंशन है 1:0, इसका मतलब ये है कि इस सिंगल वायर के ऊपर बेसिकली 2 इनपुट्स या 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 बिट्स आ रही हैं। तो उन दोनों को ये XOR का जो सिंबल है ये एक्चुअली प्रोसेस कर रहा है और उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आउटपुट पे आ रहा है। सो हमारी ये एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है ये रिप्रेजेंट हो रही है इसके साथ, बिल्कुल ठीक कर रहा है ये, ठीक है। तो इसकी एक आउटपुट जो है वो इसके साथ कंबाइन करके ये एक्चुअली दो वैल्यूज हैं जो कि इनपुट हो रही हैं इन XOR गेट। ठीक हो क्या? सो दिस इज करेक्ट। एंड उसके बाद हम जाते हैं थर्ड एग्जांपल लिखते हैं। न्यू सोर्स Verilog module EX3, right? नेक्स्ट। सॉरी, एक चीज़ में यहाँ पर रिमूव कर देते हैं इसको हम, कि मैं इनपुट्स और आउटपुट्स पोर्ट्स नहीं मेंशन कर पाई। न्यू सोर्स, mention it as EX. This is Verilog module EX3. Next. Yes. अब आउटपुट पोर्ट्स हैं इसकी आउट, दिस इज आउट, एंड इनपुट्स हैं इसकी IN1, IN2, IN3 and IN4, right? Next and next. ओके, अब इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज भी थी, वायर T0 and T1. After that I have to inherit EX1 and EX2 both. तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, EX1 मेंशन करती हूँ, उसका नाम रख देते हैं G1, राइट। इसकी आउटपुट क्या है, T0 एंड इनपुट्स हैं IN1, IN2, IN3 and then I have to instantiate EX2, तो उसके लिए मैं EX2 कीवर्ड यूज। नाउ दिस हैज बिकम माय कीवर्ड बिकॉज मैं इनको इनहेरिट करना चाह रही हूँ EX3, तो ये अब कीवर्ड्स बन गए हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज T1, इनकी इनपुट्स हैं IN1, IN2, IN3, IN4, राइट। एंड लास्ट में मैं इनको एंड कर रही हूँ G3, और एंड किसके दरमियान हो रहा है, T0 एंड आउटपुट है इसकी आउट एंड इनपुट्स हैं T0 एंड T1, सेमीकोलन, एंड दिस इज माय कंप्लीट थिंग। नाउ अब वेरीलॉग ने ये खुद ही से समझ लिया है दैट दिस EX3 इज एक्चुअली inheriting, this is actually acting as the base class.
सो बिकॉज क्योंकि इसने EX1 और EX2 जो है इन दोनों की को G1 और G2 को एस इनहेरिट किया है अपने अंदर, ठीक है, इसके मॉड्यूल्स को इसने इनहेरिट कर लिया है। तो अब इसको मैं क्या करती हूँ टेस्ट करने के लिए, आई सेट इट एज टॉप मॉड्यूल, यस, and after that I synthesize it, right. तो अब ये सिंथेसाइज हो गया है, तो इसको हम चेक करते हैं कि इसका स्कीमेटिक किस तरह से बना है। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसको हम डबल क्लिक करके चेक करते हैं। तो इसने क्या किया है, EX2 नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है और एक EX1 नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया है, जिसमें से IN1, IN2 और IN3 जो है ये रीयूज़ हो रही हैं इन EX1। एग्जैक्टली हम यही चाह रहे थे। और IN4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ EX2 के अंदर जा रही है एट D, राइट। और उसके बाद EX2 की आउटपुट आउट और EX1 की आउटपुट Y, ये दोनों एंड हो रही हैं राइट हियर। एंड आफ्टर दैट इसकी जो आउटपुट है फाइनल कैप्स में OUT आउट, तो ये आपकी फाइनल आउटपुट बता रही है। तो इसके अंदर फर्दर क्या हो रहा है, डबल क्लिक करके हम फर्दर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो EX1 के अंदर एग्जैक्टली वही सर्किट है जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था, ठीक है। और EX1 को अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली बी एग्जैक्टली द सेम सर्किट जो हमने EX1 के अंदर चेक किया था, ठीक है। तो इसको आप री चेक भी कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि वाकई इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको मेंशन की थी, दैट जस्ट इन केस मैंने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल मेंशन किया था, दिस वन हियर, जो कि बता रहा है कि इस सर्किट की आउटपुट्स क्या होंगी एट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मेरे पास 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, उनकी ये पॉसिबल आउटपुट्स हैं। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं दैट वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन के बजाय अब मैं सिमुलेशन में जाती हूँ एंड मैं अभी EX2 को ही देख रही हूँ, ठीक है। इसको मैं सेट एज राइट। तो मैंने अभी EX2 के ऊपर ही इसको रखा हुआ है और मैं इसको सिमुलेट बिहेवियर देखना चाह रही हूँ। आई डबल क्लिक इट, राइट। Now it has automatically opened another window. राइट। तो अब ये मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स शो कर रहा है आउट A, B, C एंड D, और ये EFG मेरे इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मुझे आउटपुट चेक करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पिडेंसेस की फॉर्म में शो हो रही हैं। दे आर basically not showing anything concrete for our understanding। तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज सेट कर लेती हूँ एज कॉन्स्टेंट्स। दो तरीके होते हैं चेक करने के लिए, एक आप क्लॉक अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
क्लॉक अप्लाई करने के बाद आप उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेव फॉर्म्स का बिहेवियर कैसे आ रहा है, आउटपुट और इनपुट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी फॉर स्टार्टिंग पर्पस हम उसको कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं। फोर्स कॉन्स्टेंट ए को मैं अप्लाई करती हूँ वैल्यू 0, राइट, एंड बी को मैं फोर्स कांस्टेंट अप्लाई करती हूँ अगेन 0, एंड सी को अप्लाई करते हैं अगेन 0, एंड आफ्टर दैट डी को हम 0 के बजाय 1 अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है उसको देखना चाह रही हूँ। सेकेंड कॉम्बिनेशन मेरा ये बता रहा है कि व्हेन आई हैव 0 0 0 1, डी को सिर्फ 1 रखा है तो मेरी आउटपुट 1 आती है। तो मैं इसको सिर्फ चेक करना चाह रही हूँ, राइट। तो अब इसको run for a specified time on the toolbar. I click it. Right, तो अब मेरा आउटपुट वेवफॉर्म जो है ये हाई आ रही है, सिर्फ D हाई आ रही है और इंटरमीडिएट वैल्यू जो है E ऑटोमेटिकली हाई आ रही है, ठीक है। और D को मैंने हाई रखा और A, B और C इन तीनों को मैंने लो रखा हुआ है। दिस जो आपका फॉलिंग एज है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग लॉजिक 0 वैल्यू, एंड जो राइजिंग एज है दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, या आपकी जो स्क्वायर वेवफॉर्म जो है जिसके अंदर बाइनरी 1 होती है वो आपकी लॉजिक हाई है। तो आपकी आउटपुट जो है दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग 1। तो अगर हम इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करना चाहें, लेट्स सी अगर ये चेंज होती है, इसको अगर हम फोर्स वैल्यू 0 अप्लाई करके देखें तो डज इट चेंज? यस। तो अब मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ जो है उनको 0 कर दिया है, तो आपकी आउट जो है वो भी 0 आ रही है। इज़ इट एक्चुअली द सेम? यस। मैंने सबको 0 असाइन किया है तो आउटपुट भी 0 ही होनी चाहिए थी। सो दिस इज़ प्रूविंग दिस फैक्ट. So this concludes our today's lecture, and I hope that you have ample idea about how the Xilinx software works and how you are going to implement your code. तो आपकी लैब टास्क क्या थी? लैब टास्क एक तो ये थी कि आपने ये जो एक्सरसाइजेस को अपने पास रिपीट करना है, राइट। एंड सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने एक फुल एडर मॉड्यूल यूजिंग अ हाफ एडर इंस्टेंस इम्प्लीमेंट करना है खुद से। हाफ एडर इंस्टेंस का मतलब ये है कि एक फुल एडर के अंदर हाफ एडर इंस्टेंस इनहेरिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिकॉज अ फुल एडर इज यूजिंग द सेम एक्स और इक्वेशन जो कि हाफ एडर के अंदर भी आती है, यानी सम के लिए जो आपकी एक इक्वेशन फुल एडर के लिए आ रही है वही इक्वेशन हाफ एडर के लिए भी आती है। तो सम हाउ अगर आप हाफ एडर का इंस्टेंस पहले क्रिएट कर लें तो यू कैन इनहेरिट इट इन योर फुल एडर। आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको आप वेरीफाई करेंगे, और उसकी वेरीफाइड जो आपकी स्क्रीनशॉट्स हैं, आपने जो उसका सर्किट हार्डवेयर जो आपका सिमुलेट करके उसने आपको Xilinx ने आपको स्ट्रक्चर उसका दिखाना है, वो आपने अपनी रिपोर्ट में डालना है। एंड ऑल्सो आपने उसकी वैल्यूज़ को, बेशक आप कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ अप्लाई करके या अगर क्लॉक भी देना चाह रहे हैं तो आप वो अप्लाई करके आप उसकी वेवफॉर्म्स ऑब्जर्व करेंगे ताकि ट्रुथ टेबल उसका वेरीफाई हो, राइट। तो आपने ये दोनों टास्क जो हैं सबमिट करने हैं। आई विल गिव यू एम्पल टाइम फॉर दैट। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको फोकस करें, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू perform it. Inshallah, I will discuss your next lab task very soon, inshallah. Allah Hafiz.